So let's get the first match rolling. Both the umpires are all set. The toss was being created in the middle of the pitch during the inauguration, and toss was won by the team captain Praveen Sawant of Mandrem Boys, and they have elected that they are going to give an opportunity for the opponents to bat first. Mandrem won the toss, elected to field, and looks like the first will be bowled by Rishikesh Gowd. And on the other hand, the team of Kalangut are sending their trump card in the initial stages of the match. It's Subodh Hadfadkar to start off things with the bat. On the non-strikers and to accompany him, it will be the batter Prakash. Rishikesh Gowde to start off things here from the coconut trees end. And yes, there comes the indication. There comes the signal. Green one. Let's place the call. Get ready for the first ball of this tournament. As we enter the first stages, the initial ones, it's going to be a power play. As we can see, restrictions of only 2 fielders going to the boundary lines. Rishikesh Gowde on his bowling mark. Meanwhile, Subodh to start off things. Very first delivery, attempting a reverse sweep this time. Looking at the umpire, he says it's a fair delivery this time. Mandrem Boys Perineum, consisting a lot of big names from the Perineum Taluka, will be in action in the further times. Meanwhile, the first ball goes in form of a dot. Second ball, he goes big. This time, trouble, fielder beneath that, and into the gap of 2 fielders. Oh no. A comedic movement has been occurred into the pitch. In the middle, there was really an easy opportunity to grab hold of that. A piece of cake onto the ground. But there was no connection between both the fielders, and as a result, they are dropping that one. Meanwhile, Subodh is the man to a lifeline, and things are getting started for the team of Awesome Boys Kalangut. This time he goes big, ball goes high in the air, and it's up, it's over, and it and now what a way to start off things. Scoreboard moves on to 7. This time through the offside, through the point region. Outfielder be slow there. Because of that, the ball will surely take a hold there, and the batters have to run hard for it. This is how costly can a catch be. The catch was being dropped, not even attempted. After that, one single taken. First, this time, batter comes on strike. He goes for a big one, and this time a couple. Scoreboard moves on to 9. This time towards the mid-on region, as it will pierce the gap and go towards long on. Only a single in progression, and it's taken. It will be a brilliant start here because the team of Awesome Boys are reaching the double-digit mark in the first over itself. It's 10 for none. Trying to go big, it was a slower one. Rishikesh Gowde smartly changing the pace, changing the line, and as a result, the very first over, the commencement of the tournament, the first over goes for 10 runs. And the highlight of it, the first ball went dot, a reverse sweep was attempted, a single being taken where the ball went high, the catch was dropped. Single, and Prakash gets off the mark with a bang, with a maximum. And the conclusion of the first over, it's 10 for no man down. Ball is being handed to one of the trump cards of Mandrem. It will be an encounter to watch out. It will be a face-off, a bit interesting there, as the mystery bowler Praveen Sawant comes onto the bowling mark from the road end. Scoreboard has moved on to 10, a brilliant start, just like Awesome Boys would have expected.
And he goes big this time, and field a minute there. Oh no, trouble! Nikhil Gadekar makes no mistake, and as a result, in the very first ball itself, he has to depart. The man that had off things in style, the man that got off the mark with the maximum, is being sent back. A brilliant delivery by Praveen, and also a well-judged catch in the deep by Nikhil Gadekar. As a result, first man down at 10. TJ. New man in, Sagar. Very first delivery, oh lucky for him, it will beat the field. Present inside the third man region. Oh, that's a brilliant stop there. Could have been a boundary, but the efforts of the field, he's successful in stopping that. On the other hand, the new batter gets off the mark in the very first ball itself, and scoreboard moves on to a dozen. Praveen Sawant can cut the ball in both ways, resulting in good start for his team, and he's providing it in the very first ball. Trying to go big, yes, there comes the variation. A slower delivery to change off things this time. It will be a really hard over. Subodh Hadfadkar, one of the pinch hitters of this team, still on the ground. Will have time to show off his aggressive intents in the coming time. But until then, a big partnership will be essential in order to make a big total in the very first match. This time through the offside. Oh no, a mistake has been committed by the fielder. Rajesh Gaudeke, Huku present there. And until the backup comes inside, it will be a single there. In this over, looks like they are not taking any risk so far because they know how harmful, how lethal can Praveen Sawant be. Until then, scoreboard moves on to 13. Trying to go big this time. He was trying to go down the offside onto the long off region, but still, as I said, it's not a piece of cake to face a bowler like Praveen Sawant. They must watch him carefully, or else the consequences will not be that good. Until there, Mandre boys are dominating this over. Reverse to, it's a brilliant shot there. Gopal Gadekar will miss it. And finally, Subodh Hadfadkar, who was struggling in the initial part, now gets off the mark into his boundary accounts. And the ball races away for a boundary. Reverse sweep attempted, takes a leading edge, and it goes all the way for a boundary. Started off the over with a wicket and now ends off with a boundary, and the scorecard moves on towards the total of 17. One man down. DJ. Tag again. This time ball goes high. Oh no, and it will just beat the fielder. He was trying to stop the ball. He was trying to catch the ball, but just above his height. Praveen Sawant is being deceived by that of the ball, and he starts off things with the boundary. TJ. That's a brilliant start for the over, Sagar. This time he goes big, it's flat. Has it cleared away? Yes, it has. Both the hands are being raised sky high. Sagar is on fire till now, and he's been getting aggressive against the best bowler in the attack. Hrishikesh Gowde is being sent again and again out of the park, and this time scorecard moves on towards
27 runs, and now the team of Awesome Boys into the driver's seat so far. DJ. And Sagar replacing Prakash. And if we start about the first things, if we talk about it in the first over, it clearly went by the side of Awesome Boys Kalangut as Rishikesh was being thrashed for 10 runs and also a crucial wicket in the second over's first delivery. Praveen Sawant provided it. The first breakthrough for his side, also the first wicket of the tournament. But after that, Sagar steps in and he is on a complete rampage. Blowing out a full carnage into this Kalangut ground. He knows exactly what is the requirement, and surely he is emphasizing on all the responsibility that is being provided by the captain. His responsibility is to strike the ball hard, and he's doing it with absolute perfection this time. Because even there are a lot of big names in the opponent sides, as it's a taluka level tournament, so a lot of big names from their respective panchayats and municipalities, towns, cities will be mixed up, will be configured in one strong squad. But until now, the highlight of this first innings, Sagar is on fire. Boundary, sixer. What story will the third ball tell us? This time there's a brilliant delivery by Rishikesh Gowde. He was trying to go down the leg side, was trying to go deep inside the crease, but Rishikesh says no, not this time, as it's a dot. Scorecard stays still on 27. This time to the offside side. It's a brilliant executed stroke there. Is it going? No, it isn't. As I said, the offside side from this end will be a hard one to fetch runs because it's a slow outfield. A bit of sand present there, and as a result, the batters out on the hard for it. Doesn't matter as they are successful in fetching 2 runs from that, and scorecard moves on to 29. This time he goes towards the leg side. Oh wow, the wagon wheel of Sagar will be worth watch because he is covering all the ground. Doesn't matter leg side, doesn't matter the offside. He is playing towards the whole ground, playing like a 360 player. Another boundary into the gap of mid-wicket and square leg. Scoreboard moves on to 33. A triple Nelson for 1 onto the scorecard. This time he goes weak, trouble there, and fielder beneath that. This time he takes it. Oh no, he has dropped it. For a moment we thought that the fielder is in complete control, and we usually say this, a famous phrase, luck favors the brave, and because Sagar had shown the bravery of hitting those big shots, luck is by his side. So here's the bottom line. After the completion of first 3 overs, the scorecard reaches towards 34. It's a brilliant run rate so far. Sagar, the main man to watch out for. Subodh to get off things. So first 3 overs completed. It's 34 for 1, and the control moves on to Krishna Devji for the coming 3 overs. Thank you. चौतीस धावा गड्याच्या मोबदल्यात.
थैंक यू दीप। 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि खेल चलता है इस वक्त चौथे ओवर का। ओह बढ़िया लाइन वहां पर सागर को बीट करते हुए। देखिए शुरू के माहौल में सागर ने जो कि अटैक बैटिंग की, बिल्कुल बच्ची बैटिंग, जहां पर एक मौका उनको मिलता हुआ और उसी मौके का फायदा उठाएंगे किस तरह से ये माहौल बनेगा मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, सागर ऑन स्ट्राइक मैदान में। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, तो इसे धीमी डाली हुई गेंद मैदान में। देखिए कितनी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करे यहाँ पर ऑफ स्टंप की दोनों गेंदें बाहर डाली। जो सेट खिलाड़ी सागर को, उसको अभी तक रोक के रखा है, जहां पर मुश्किल है बात मैदान पर, लेकिन मुश्किलों को आसान कर रहा है खिलाड़ी मैदान पर प्रसाद मैच में। हालांकि ऐसे शुरू में कैच जरूर छूटा, लेकिन उसके बाद क्या बॉलिंग देखिए मैदान पर, हट गए, बिल्कुल हट गया ऑप्शन के बाद। गोपाल पर अच्छी फील्डिंग स्लिप पर, जहां पर रन रोकते हुए गोपाल कुछ मैदान पर, और अंपायर का इशारा पहुंचता हुआ जहां से 22 के रूप में मैदान पर निकलता हुआ 1 रन और 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 35 जिस वक्त हालात मैदान पर, 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर। सुबोध अभी तक इस मैदान पर। देखिए दीप हाल ही में उनको मालिका वीर जो कि बाइक से नवाजा गया था, एक बेहतरीन खिलाड़ी है मेरे अंदर से, तो शायद उस अंदर से अगर ये बैटिंग करते मैदान पर सेट है खिलाड़ी, और काफी एकदम शांत बैठे। पता है कि उनको सागर ने अटैक किया मैदान पर, और सागर जब अटैक करेंगे तो शायद वो बल्लेबाजी देख रहे थे, लेकिन अब इस समय पर सुबोध किस अंदाज में अपना पैतरा अपनाएंगे मैच में। ओह रिवर्स खेलने का प्रयास का, पर चूके फिर से स्लिप पे खिलाड़ी गोपाल पीछे खड़ा है, जहां से वो सिंगल निकला, सीधा थ्रो लॉस्ट एंड पर पहुंचा और अंपायर का वापसी में इशारा था, जबकि 22 के रूप में। देखिए अभी तक अच्छी बॉलिंग, 4 गेंदें जो डाली ना, चारों में से चारों गेंदें अच्छी डाली है, जिसमें से 2 बार वो 22 के रूप में रन मिलते हुए मैदान पर। मतलब गेंदबाज के खाते में अभी तक कोई रन नहीं निकलता मैदान पर। ऑन साइड पर हवा में शॉट, मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। देखिए पीछे हट गए वहां से, बड़ा शॉट के तब्दील के शॉट को, उतनी खराब बॉल नहीं थी, लेकिन उस गेंद को एक अच्छी टाइमिंग के साथ पहुंचाया सीमा रेखा से पार, 6 रन। शॉट सागर के बल्ले से निकला मैदान पर, और फिर से लगी पैड पर। अब देखना पड़ेगा इशारा, शायद क्या मौका मिलेगा रन आउट का, नहीं वहां से तो बैकअप है लॉन्ग ऑन पर, हालांकि 1 ही रन मिलेगा। और देखिए पे वापस इस खेल में स्टेप पहुंच चुके नॉट स्ट्राइक एंड पर। देखिए थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दी फील्डर ने, और लेग 22 के रूप में रन मिलते हुए मैदान पर 2, मतलब ये और अभी तक इस वक्त देखा जाए 10 रन का निकल चुका है, जहां पर 2 रन 22 के निकले, और टीम का स्कोर पहुंचा जो कि 44 रन पर। मैदान पर और शपल क्या फुल टॉस बनाकर खेला, ऑन साइड पर गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा, खिलाड़ी आराम से टहलते पहलते 900 निकल पाता, 1 रन निकला मैदान पर। 1 रन के साथ 45 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल चल रहा है इस वक्त इस 5 ओवर का। दत्तराज पर अब जो कि इस वक्त मोर्चे पर गेंदबाजी के सामने सुबोध और सागर, ये जोड़ी मैदान में सेट, दोनों खिलाड़ी और आक्रामकता दोनों ने अटैकिंग बैटिंग की मैदान पर। और फिर से हट गया ऑप्शन के बाहर चले गए, रूम बनाने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी ने अच्छा वहां पर बैकअप किया, रोका गेंद को, 1 रन वहां पर निकलता हुआ, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर भी पहुंचा मैदान पर 46 रन पर। इसके बाद का मुकाबला होगा जो कि दोनों टीमें तैयार रही है। ऑनर बिल्कुल तैयार है, सुबह लगभग 9:30 बज चुके पहुंच चुके संदीप सर उनके ऑनर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, और नो बॉल का इशारा मैदान पर। नो बॉल, शायद पैर थोड़ा सा आगे निकल चुका है। और मोनो बॉल के हिट मौके पर फ्री हिट का माहौल मैदान पर चलता हुआ। देखिए फ्री हिट का माहौल सागर के लिए, मौका आपके पास वो सुबोध के लिए अटैकिंग बैटिंग करने का, एक बड़ा शॉट चाहिए इस ओवर में।
इस बार चेंज ऑफ पेस का गति परिवर्तन, गेंद को मिड ऑन पर खेलेगा, डीप में प्रोटेक्शन रखा है, यहाँ पर गेंदबाज खुद चलेंगे, गेंद को आराम से उठाए, वहां पर एक ही रन बनेगा। मतलब फ्री हिट की गेंद पर भी आपने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की मैदान पर, वापसी की इस ओवर में और टीम का स्कोर पहुंचा मैदान पर 48 रन पर। 48 हालत है मैदान पर, जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर। ठीक है, आज शुरू में कुछ हद तक दूर से अटैकिंग बैटिंग, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सिकंजा कसा मैदान पर गेंदबाजों ने अपने हाथों अपने आप। और इस बार इनसाइड आउट, हवा में गेंद, कवर बाउंड लाइन के बिल्कुल गेंद करीब, उस कैच को लपका गया और ये आउट मैदान पर। धन्यवाद। वापस खेल मैदान में चलेगा, जिस तरह से माहौल बन रहा है मैदान पर। ओ आते ही बड़ा शॉट मारेगा प्रयास किया, चूंकि वहां पर बल्ले पर लगी, उसके बाद लगी पैड पर, मैदान पर रन लेने के आसार लगभग समाप्त हो चुके हैं। देखिए खिलाड़ी बहुत खास है, ये ताकत बहुत ज्यादा शक्तिशाली खिलाड़ी, कद बिल्कुल अच्छा, ऑलराउंडर की भूमिका में ये बहुत बार काम करते हैं, बॉलिंग और बैटिंग करना ये ज्यादा पसंद करते हैं मैदान पर। और उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है उनकी बैटिंग मैदान पर। और पिच गेंद ऑन सेट पर खेला, मिड विकेट पर, पहला रन बहुत तेज निकला और एक रन के साथ अपना खाता भी खोला मैदान पर, और इसी के साथ टीम का स्कोर भी 49 पर पहुंचा। 5 ओवर के बाद 2 विकेट नुकसान के बाद 49। जो कि मिलाग्री बॉयज बारदेश, साई जय बोडगेश्वर बिचोली कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। मिलाग्री बॉयज और साई श्री बोडगेश्वर टीम कप्तान जो कि टॉस के लिए पहुंचे बिचोली। इसके बाद उनका मुकाबला है आपको, जो कि पहला कॉल दिया जा चुका है। लक्ष्मण जो के मैदान पर, देखिए माहौल के साथ ये मैदान में खेल चलेगा, जिससे माहौल बन रहा है मैदान पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है तो अमूमन वो ताकत रहती है उनके पास ज्यादा, और ये हम हमेशा देखते हैं आखिरी ओवर्स में अटैकिंग बैटिंग खासकर होनी चाहिए मैदान में। और बल्ले पर लगी, स्लिप के खिलाड़ी की तरफ निकल चुके हैं, 1 रन वहां पर निकला, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि मैदान में पहुंचा इस समय पर, जबकि इस वक्त कुल मिलाकर इस मैच के दरमियान 50 रन पूरे। सुबोध ऑन स्ट्राइक मैदान पर, सेट खिलाड़ी सुबोध है जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग जरूर की, लेकिन आज जिस तरह से माहौल बन रहा है, आपको 70-75 तक चाहे तो टोटल हो रहा था मैदान पर, लेकिन और शुरू में जो गेंदबाजों ने आखिरी कुछ और डाली, जहां पर रोक के रखा है सामने से बल्लेबाजों को मैदान पर। ओ बल्ले पर लगी निचले हिस्से पर, विकेट कीपर कर पहुंची, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, शफल के शॉट के लिए वो जगह ढूंढ रहे हैं मैदान पर। देखिए ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा दुविधा में है सुबोध, जहां तक उनकी बल्लेबाजी हम जानते हैं ये आक्रामक बल्लेबाजी, लेकिन आज बहुत सा शांत भी रखा है उनको मैदान पर। सागर ने 27 रन की बैटिंग करी मैदान पर, उसके बाद उतनी कोई ठोस बैटिंग नहीं। ओ शॉट आर्म पुल किया गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन सी मारेगा से पार, 6 रन के लिए।
एक बड़ा शॉट इससे पहले चौवा था उसके वजह से एक छक्का, दो बड़े शॉट अपने इनिंग में अभी तक। जिस तरह से माहौल है इनका ना, ये बैटिंग बहुत ज्यादा तेज करते हैं। ओ इस बार बिल्कुल बड़ा शॉट, फिर से मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। अरे अच्छा मोमेंट प्राप्त कर चुका है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओ तेज गेंद लेकिन दूसरी बाहर निकले, वाइड बॉल का इशारा मैदान में पहुंचा, वाइड के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, 63 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अब यहाँ से एक और बड़ा शॉट, आप 70 तक पहुंच सकते हैं इस मैदान पर, अगर एक दो शॉट और बनते तो मैदान पर असुवत में काबिल है मैदान में। और इस बार बल्ले पर लगी, विकेट कीपर के लिए मौका, लेकिन हाफ चांस था मैदान पर, चाहे तो मौका बन रहा था लेकिन थोड़ा सा आधा चांस, जहां पर ऐसे मौके बिल्कुल मुश्किल रहते हैं हमेशा, लेकिन एक रन वहां पर बना। और एक रन के साथ देखिए अंतिम 3 गेंदों पर कितने रन बने, जो कि 14 रन, जिसमें कि एक वाइड शामिल, 2 छक्के, एक सिंगल मैदान पर, मतलब 5 गेंदे इस ओवर के हो चुके मैदान पर। 64 पर पहुंचा टीम का स्कोर। क्या बड़ा शॉट मैदान पर देखने को मिलेगा, क्या 70 तक ये टोटल पहुंचेगा या फिर उस 70 से पहले इनको रोका जाएगा मैदान पर। ऑन साइड पर हवा में खेला गया, लॉन्ग लेग सी मारेगा पर, और नजारा लग रहा है कि निकली सीमा रेखा से पार। हॅलो हॅलो येस, यानंतर सामना होईल मिलाग्रीस बॉयज बारदेज आणि त्याचबरोबर साई जय बोडगेश्वर बिचोली. तरी विनंती करू दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे यायचं आहे. आधीच थोडासा इकडे विलंब झालाय पहिल्या सामन्यासाठी, त्यामुळे अजून विलंब होऊ नये
जी दक्षता आपणही घ्या ही नम्र विनंती. त्यामुळे विनंती करतो मिलाग्रिस बॉयज बारदेश आणि त्याचबरोबर साईजे बोडगेश्वर बिचोलीम दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण कृपया कमेंट्री बॉक्सकडे संपर्क साधावा. नाणेफेक करून घेतली जाईल व त्वरितच यानंतर फुल्ला सामना खेळवला जाईल. आपण पाहतोय स्पर्धा तालुका लेवलची ऑर्गनाइज बाय ऑसम बॉयज कलंगूट. पहिला सामना पहिली इनिंग्स आणि त्याचबरोबर पहिल्या मॅच नाणेफेक ही गेली मांजरे बॉयज पेडणे संघाच्या बाजूने व त्यांच्या विरोधात पहिली बॅटिंग करत असताना कुठल्या ते एकंदरीत 70 धावा आणि अर्थात 71 धावांचं एक तगडं आव्हान ठेवलं गेलं त्यांच्या समोर. बॅटिंग करत असताना चांगली कामगिरी झाली अर्थात सुबोध हडफडकर कडून. सुबोध हडफडकर हे एक नाव अर्थातच या संपूर्ण गोवा राज्यामध्ये गाजलेलं. आज मात्र आपल्या घरच्या तालुका संघात खेळत असताना कुठल्याने 20 धावा ओपनिंग पेअर मध्ये आला होता. प्रकाशने केली होती चांगली सुरुवात, त्याच्या बरोबर कुठल्या 9 धावा व त्याचबरोबर जेव्हा प्रकाश बाद झाला, प्रकाश जरी बाद झाला तरी त्यानंतर सागरने या संपूर्ण मॅच मध्ये चौकार षटकारांचा प्रकाश पूर्णपणे सोडला. त्याच्या पूर्ण बॅटिंग मध्ये त्याने खेळले 16 चेंडू व त्या 16 चेंडूत त्याने मारले 2 मोठे फटके आणि 2 चौकार आणि त्याचबरोबर एक सहज गतीने मारलेले बरेचसे कन्व्हेन्शनल क्रिकेटिंग शॉट्स आणि त्याचबरोबर हा सामना परावर्तित झाला तो अर्थात 70 धावांपर्यंत, ज्यामध्ये मोठं अर्थात कार्य केलं ते 27 धावांचं एकट्या सागरने. आणि ही सगळी समीकरणं एकत्रित करत हा संघ पोहोचलाय तो अर्थातच 70 धावांपर्यंत आणि समोरच्या बलाढ्य मांजरे बॉयज पेडणे संघासमोर यांनी आव्हान ठेवलंय ते 71 धावांचं. आपण ही स्पर्धा पाहतोय लाईव्ह युट्यूबच्या माध्यमातून. अर्थात टेनिस क्रिकेट बेस्ट इन द बिझनेस. अगदी क्लिस्टर क्लिअर त्यांची क्लॅरिटी आणि त्यामुळे अगदी घर बसल्या तुम्ही या कलंगूट नगरीचा आनंद लुटू शकता. तर वळूयात पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. पहिली मॅच अर्थातच प्रत्येक मॅच ही नॉकआउट स्टेजची अर्थात डू ऑर डाय, त्यामुळे प्रत्येक सामना जिंकणं हे अनिवार्य दृष्टिकोन असेल जर या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर. व ते आव्हान जिवंत ठेवण्याच्या मार्गाने इकडे प्रथमताची जोडी प्राथमिक जोडी आपण एका बाजूने पाहतोय राजेश गावडे उर्फ हुकू आणि त्याचबरोबर अंबाजी कोनाटकर ही सलामीची जोडी आणि त्याचबरोबर बॉलिंग मध्ये साईराज होतोय सज्ज. राजेश गावडे उर्फ हुकू होतोय सज्ज स्ट्रायकर एंडवर, तर अर्थात सुबोध हडफडकर दिसतोय विकेट किपरच्या भूमिकेत. प्रथमताच असेल पॉवर प्ले षटक आणि त्यामुळे नक्कीच 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर दिसत आहेत. सो हिअर वी गो. पहिला चेंडू राजेश गावडे क्लीन्स हिम अप. पहिल्याच बॉलवर दांडी गोल. महत्वाच्या सामन्यामध्ये एका महत्वाच्या बॅटरला महत्वाची विकेट आणि महत्वाचा ब्रेक थ्रू. फर्स्ट मॅन गोज डाऊन फॉर गोल्डन डक. डीजे हाती हा सामना संपूर्णचा दमखम ज्याच्या खांद्यामध्ये होता, ज्याच्या हातामध्ये होता, असा फलंदाज मात्र पहिल्याच बॉलवर गोल्डन डकच्या रूपामध्ये परततोय माघारी. नक्कीच एक मोठा दणका दिलाय पहिल्याच बॉलवर साईराजने. ज्या प्रकारची बॅटिंग झाली आहे कलंगूट संघाच्या बाजूने अगदी त्याच प्रकारची बॉलिंग सुद्धा रदच त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि साईराजने दिली आहे पहिल्याच बॉलवर पहिली विकेट. आणि नवीन फलंदाज सज्ज होतोय दत्तराज परब स्ट्रायकर एंडवर. साई या नावाने ओळखला जातो. अर्थातच मुरजिम या गावातील एक नामवंत खेळाडू ऑलराऊंडरच्या भूमिकेत आपण त्याला पाहिलं पहिल्या इनिंग मध्ये ऍज अ बॉलर, तर आता ऍज अ बॅटर 1 डाऊनच्या पोझिशन मध्ये. तर दरम्यान सक्सेसफुल बॉलर पहिल्याच बॉल मध्ये विकेट घेणारा साईराज सज्जा.
पहिलाच बॉल डाऊन द ग्राउंड, ट्रबल आणि दुसऱ्या चेंडूवर अनदर मॅन गोज डाऊन. तर हिरवगार आणि त्याचबरोबर एकदम कडकडीत ऊन. पण जर डगआउट पाहिलं मांजरेम बॉयज पेडनेम संघाचं तर संकटाचे काळे ढग त्यांच्यावर कोसळत आहेत. कारण पहिल्याच 2 चेंडूवर अशा प्रकारची सुरुवात अपेक्षित नसेल. कारण जर तुम्ही एका 6 ओव्हरच्या मॅच मध्ये तुम्ही 70 धावांचा 71 धावांचा तुम्ही पाठलाग करताय तर अशा प्रकारची सुरुवात नक्कीच महागात पडू शकते. पण तरी सुद्धा जर या स्कोरकडे आपण पाहिलं तर पेडनेम तालुक्यातील नामवंत फलंदाज अजूनही यादीमध्ये येणं बाकी. त्यामुळे जरी 2 फलंदाज लवकर गेले तरी सुद्धा हा सामना अजूनही ऑन राहील. तर दुसऱ्या बाजूने साईराज यू ब्युटी पहिले 2 चेंडूवर 2 गडी बाद आणि ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक सज्ज असेल स्ट्रायकर एंडवर प्रज्योत. आणि त्याचबरोबर बॉलला फक्त दाखवायची होती दिशा. चांगला अटेम्प्ट झाला. नक्कीच सगळ्या प्लेयर्सनी दाद सुद्धा दिली. भले ही जेल सुटला तरी सुद्धा अटेम्प्टचे पूर्ण मार्क आणि त्याचबरोबर अखेरच्या क्षणी पहिली धावी घेतली जाते. आणि आता ऑफिशियली 71 धावांचा पाठलाग होतोय सुरू होतोय. श्री गणेशा धावसंख्येचा या एका सिंगल निशी उघडतोय खातं गोपाळ. अंबाजी कोनाडकर पहिल्याच बॉलवर पुलचा बारदार फटका फिल्डरने केलाय प्रयत्न आणि त्याचबरोबर चांगली अटेम्प्ट. नक्कीच एक चांगला स्टॉप म्हटला जाईल. कारण जर आपण पाहिलं तर अर्थात आपलं संतुलन गमावलं होतं तर संतुलन पण सावरायचं होतं आणि बॉलला पुन्हा थ्रो सुद्धा करायचा होता. अशा प्रतिकूल स्थितीमध्ये सुद्धा चांगली फिल्डिंग. अंबाजी कोनाडकर अजून एक अग्रेसिव्ह खेळाडू, अजून एक आक्रमक शैलीचा फलंदाज मांजरेम संघाच्या बाजूने. धाव संख्या पोहोचली आहे ती 3 धावांवर. यावेळी सुंदर चेंडू राईट ऑन टू द ब्लॉक होल. इकडे अर्थातच आपल्या स्ट्राइक बॉलरवर जबाबदारी दिली पहिल्या ओव्हरची आणि आपल्या कॅप्टन ने जी आपल्या जबाबदारी दिली आहे ती कशा पार पाडायची याचं एक चांगलं उदाहरण पेश करून दिलंय. पहिल्याच षटकामध्ये सुद्धा पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये नक्कीच एक वाखाणण्याजोगी कामगिरी साईराज कडून. यावेळी चेंडू खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी गुडघ्यांच्या अगदी थोड्याशा खालनं हा चेंडू विसावतो. विकेट कीपर सेफ हँड सुबोध हडफडकर यांच्या हातामध्ये. आणि याचबरोबर ओव्हर नंबर 1 कम्स टू एन एंड. पहिल्या षटकाची झाली आहे सांगता. 71 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये गमावले 2 विकेट्स आणि धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 3 धावा. अशी नाजूक स्थिती मांजरेम बॉयज पेडनेम संघाची. डीजे तर आता घेऊन येईल प्रज्योत पुढील षटक. प्रज्योतने सुद्धा आपला क्विक फायर कॅमिओ दाखवला होता बॅटिंग करत असताना. तर आता बॉलिंग मध्ये करायची आहे किमया आणि फील्ड सेट उघडलं जाते. फुल टॉस चेंडू फटका देऊन जायचा धावा. एका क्षणाला वाटलं होतं कॅच होतंय की काय पण गोपाळ गडेकर गोज आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मॅक्सिमम. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू हवे झेल खाली फिल्डर अँड ही हॅज टू डिपार्ट.
बदला घ्यावा तर तो असा, पहिल्या बॉलवर सिक्सर आणि दुसऱ्या बॉलवर विकेट. गोपाल गडेकर बॅक टू द पवेलियन. सांघिक धाव संख्या ही मात्र 9 धावा असताना संघाचे कॅप्टन आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे पोहोचा. इकडे मिलाग्रेस संघाचा कॅप्टन आमच्यापर्यंत पोहोचलाय, त्यामुळे विनंती आपण कृपया कमेंट्री बॉक्स कडे यायचंय. अजून विलंब करू नका. नवसो कशालकर आल्या आल्या मोठा फटका. गोज बिग, गोज आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मॅक्सिमम. माहिती आहे खूप मोठी जबाबदारी आपल्याला पार पाडायची आहे आणि ती जबाबदारी पहिल्याच बॉल पासनं इकडे सुरुवात केली आहे. नवसो कशालकर मॅन फ्रॉम पेरनेम. पेरनेम संघाचा कर्णधार आज आपल्या पेरनेम तालुक्याच्या बाजूने खेळत असताना पहिल्याच बॉलवर आल्या आल्या मोठा प्रहार. चेंडू 6 धावांसाठी फरार. धावसंख्या पोहोचते 15 वर. ओव्हर 2. टीजी कारण पहिल्या बॉलवर षटकार, विकेट आणि पुन्हा आल्या आल्या ऑफ द मार्क निघाला. 900 विथ 6. धाव संख्या झाली आहे ती 16 धावा. नक्कीच अशाच प्रकारच्या बॅटिंगची आवश्यकता आहे ती पेरनेम संघाला. ऑफ साइडला कट करण्याचा होता प्रयत्न आणि त्याचबरोबर पंचांकडे पाहिलं. ताणून धरलेली अपील आणि अंबाजीने दाखवलेली खेळ. So 55 required from 25. नवीन फलंदाज सज्ज होतोय साई दत्त कोठावळे. एक लेफ्ट हँडेड फलंदाज स्ट्राइकर्स एंडवर. ऑफ साइडला पहिल्याच बॉलवर टाकण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्याच बॉलवर झालाय पूर्णपणे बीट. तर ही आहे बॉटम लाईन, ही आहे हायलाइट आहे 2 षटकांची. पहिल्या 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि 2 षटकांनंतर सांघिक धाव संख्या अर्थात झाली आहे ती 16 धावा. म्हणजे उर्वरितच्या 24 चेंडूंमध्ये काढायच्या आहेत ते अर्थातच अजूनही 55 धावा. हा सामना जिंकण्यासाठी नवीन आलेला फलंदाज साई दत्त कोठावळे. जर आपण पाहिलं या जोडीकडे तर पेडनेम संघातील 2 नामवंत खेळाडू, एका बाजूने अनुभवाने परिपूर्ण असा नवसो कशालकर पेडनेम संघाचा कर्णधार आणि दुसऱ्या बाजूने जर बघायला गेलं तर ह्या वर्षी गोवा राज्यात बऱ्याचशा युवकांनी आपल्या नावाचा डंका वाजवला आणि पेडनेम तालुक्याच्या या युवकाने ज्याने गोवा राज्याची प्रत्येक मोठी स्पर्धा गाजवली असा साई दत्त कोठावळे सज्ज होतोय. पहिला बॉल नवसो कशालकर स्ट्रेट बॅटेड शॉट आणि त्याचबरोबर अँड इट गोज ऑल द वे.
बॉलरने पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 गडी गारद केले त्या बॉलरच्या विरोधामध्ये अटॅक ओपन करण्यासाठी आणि ती हिंमत दाखवली आहे नवसो कशालकरने. मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, यावेळेस गती परिवर्तन, थोडस पेस प्रदान केलं आणि त्याचबरोबर चेंडूचा टप्पा बाउन्स, अतिरिक्त उछाल ज्याला आपण नेहमी म्हणतो, अतिरिक्त उसळी चेंडू घेतोय आणि विसावतो विकेट कीपरच्या हाती. बॅटिंगच्या प्लेचा निर्णय घेतला इकडे दोन्ही बॅटर्सने आणि तो निर्णय कितपत योग्य ठरेल हे अर्धच कळेल येणार काही चेंडूंमध्ये. तर दरम्यान सेकंड बॉल गोस फॉर डॉट, पुढला चेंडू घेऊन असेल सज्ज. पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले, स्लॉट मधला चेंडू, 1 फूट गोस बॅक अँड बॉल गोज आउट. अठ्ठावीस धावांवर नक्की ज्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता हवी होती ती आवश्यकता इकडे पूर्णपणे भरून काढली जाते. पुन्हा एकदा मोठा फटका, शॉट आर्म and it goes all the way for a big one. थँक यू डीजे. तर नवसो कशालकर, अर्थातच मी म्हटलं होतं फरक नाही पडत, भलेही 2 फलंदाज लवकर माघारी गेले. 11चे 11 चांगले फलंदाज आहेत पेडनेम संघाकडे आणि त्याचं एक छोटस उदाहरण नवसोने पेश केलंय. यावेळेस फटका फसलाय पण लकीली फॉर नवसो चेंडू पडेल नो मॅन्स लँड मध्ये. एक धाव तर घेतली जाईल, दुसरा करण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा चाचपट पूर्ण केली जाते. अर्थात मोठे फटके तर हवे आहेतच पण त्याचबरोबर आवश्यकता आहे ती सिंगल्स अँड डबल्सची आणि ती सुद्धा इकडे पूर्ण केली जाते आणि याचबरोबर धाव संख्या पोहोचली जाते ती 36 धावांपर्यंत. अजूनही 35 धावांची आवश्यकता. यावेळी सुंदर चेंडू यॉर्कर लाईन वरचा खोडून काढला जातो. एक क्विक फील्ड अटेम्प्ट. नक्कीच याच प्रकारची चुस्ती आपल्याला दाखवावी लागेल, याच प्रकारचा जोश आवश्यक. आणि दरम्यान जर पाहिलं आपण उरलेल्या इक्वेशन कडे तर अर्थात याच बरोबर राहतील ते 18 चेंडू व त्या 18 चेंडूत जर विचार केला तर अजूनही काढावे लागतील 34 धावा. अजूनही विजयासाठी पाहिजे ते 34 धावा आणि उरले ते 18 चेंडू. अर्धी इनिंग अर्थात अर्धी मॅच समाप्त झाली आहे तर उर्वरितच्या 18 चेंडूत कसा होतोय पाठलाग या 34 धावांचा किंवा होईल का बचाव या उरलेल्या 34 धावांचा. ऐकूयात आवाज कृष्णा देवजी यांचा. धन्यवाद. तो चलिए इस वक्त स्वागत पैदा में लॉन्ग ऑफ पर खेला, 1 रन वहां पर निकलता हुआ. 17 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और 33 रनों की आवश्यकता मैदान पर. मैच ऑन रहेगा दोनों टीमों के लिए. देखिए शुरू का अगर माहौल देखा तो विकेट काफी निकल चुके हैं पहली, इसलिए तो थोड़ा सा दबाव है ना, वो दबाव बहुत कुछ कहने वाला मैदान पर. 4 विकेट निकल चुके हैं मैदान पर. तायर पाए की जोड़ी मैदान पर इस वक्त 900 जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, उनके साथ जो कि स्ट्राइक पर. फुल टॉस गेंद हल्के से खेला पर हालांकि फील्डिंग वहां पर फील्डिंग देखिए बहुत सुंदर मैदान पर. और ये एक जगह आपको बचाना पड़ेगा इस समय पर, आवश्यकता है टीम के लिए. दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे. बिचोलिम वर्सेस बारदेश कप्तान टॉस के लिए पहुंचे और हल्के से पॉइंट पर वो सिंगल निकलता हुआ. ओह तारीफ करनी पड़ेगी लेकिन बैकअप है ठीक ठाक मैदान पर. कैरेबिन स्टाइल में इस गेंद को रोका गया. 1 रन वहां पर निकलता हुआ और आवश्यकता अब मात्र 32 रनों की आवश्यकता मुकाबले में जिससे पीछे.
39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अभी भी 32 चाहिए जिससे पीछे। विकेट है मैदान पर, 6 विकेट हाथों में मैदान पर, खासकर ये खिलाड़ी बहुत खास है ये। और इस बार बल्ले पर लेग स्लिप पर शायद उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। जब तक निशाना लगने का प्रयास कर पाते तब एक रन निकलता हुआ, इक्का दुक्का बनता हुआ मैदान पर। देखिए पता है कि एक ओवर अगर 15-20 का निकलेगा तो बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए उतना फायदा रहेगा, गेंद बदला जाएगा मैदान पर, लेकिन गेंदबाजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा एक ओवर जो सबसे बेहतरीन रहे मैदान पर। ऑन साइड पर हल्के से गेंद को मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, जैसे देख रहे आउटफील्ड बहुत अच्छी, इसका कारण वहां से दूसरा तो नहीं मिल सकता। अब 900 को पता है कि इस समय पर एक बड़ा शॉट चाहिए 900 को मैदान पर। अभी तक क्रूशियल बैटिंग की इस खिलाड़ी ने लगभग 3 छक्के अभी तक लगाए अपने बल्लेबाजी में, तो कुछ उस तरह से माहौल चाहिए मैदान पर बैटिंग का। ओ शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया वहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा था हुआ जो कि ओवर का समाप्ति का। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा जबकि 40 रन पर और 41 पर, और जिससे पीछे अब मात्र सिर्फ 12 गेंदे बचे। बिचलिन वर्सेस बांग्लादेश टीम कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। 30 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे अंतिम 12 गेंदों पर 41 ये टीम का स्कोर मैदान पर। 12 गेंदे 30, 5 खिलाड़ी, अभी भी 6 विकेट हाथ में मैदान पर है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर सागर मैदान में। देखिए आज क्रूशियल बैटिंग की 27 रनों की एक तोड़फोड़ बैटिंग जो कि सख्त की गई सागर ने, जब गेंदबाजी का राइट हैंड ओवर विकेट से मैदान पर, राउंड विकेट से। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी सामने मैदान पर तैनात है। क्या रहेगा माहौल मैदान पर बड़े शॉट का। ओ पहली गेंद पर हवाई फायर, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। पहली गेंद पर निकला सिक्सर मैदान पर, छक्के के साथ इस वक्त हालात में थोड़ी सी बदली मैदान पर। फिर से फुल टॉस, स्कर्ले के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा छक्का। और अब ये मौका आसान लग रहा है कि अब यहां से उतना दूर का फासला नहीं बचा, 10 गेंदे बैक में बची है। और लाइन देखिए ऑप्शन के बाहर रखा, वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा। वाइड के साथ टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 54 रन पर मैदान पर। 71 टू टारगेट है मैदान पर जीत से पीछे। और फिर से फुल टॉस बनाकर सीधा खेला गया लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन वहां पर निकलता हुआ, और 1 रन के साथ साइदत पहुंचेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, 900 जो कि स्ट्राइक एंड पर पहुंचेंगे। और टीम का स्कोर भी पहुंचा 55 रन पर। 71 मिलाग्री टीम ने टॉस जीता और उनका कहना साफ है क्या वो पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त बॉलिंग के साथ मैदान पर, या अगले मैच का हालात हम बताते हैं आपको। देखिए शुरू का माहौल है ना, जो शुरू में लग रहा था विकेट जल्दी निकल चुके थे तो वो पार्टनरशिप चाहिए थी, ये पार्टनरशिप थोड़ी सी बनती मैदान पर। फुल टॉस गेंद, मौका था आपके पास बड़ा शॉट का, लेकिन रिवर्स मारने चले गए और वहां से ये मौका जाता हुआ मैदान पर डॉट गेंद निकलती हुई। ठीक है, अभी तक सागर की बॉलिंग देखी जाए तो शुरू के पहली गेंद से वो आक्रामकता बैटिंग में बॉलिंग दिखाई उनकी, लेकिन जो बल्लेबाजी हुई ना वो काबिल तारीफ मैदान पर थी। और फिर से आड़े बल्ले से ऑन साइड पर
हालांकि टाइमिंग उतना ठोस नहीं, लेकिन वो सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 71 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 56 रन पर। सागर वापस और लाइन देखिए तो बाहर रखी ऑप्शन की, वाइड बॉल का इशारा मैदान पर पहुंचा 57, ये टीम का स्कोर मैदान पर बनता हुआ। थोड़ा सा महंगा और मैदान पर विकेट, अब सिर्फ एक मौका आपके पास वापसी करने का। और फिर से लाइन दूर रखी ऑप्शन के ज्यादा बाहर रखिए और एक वाइट मैदान पर 58 पर पहुंचा टीम का स्कोर। लेकिन ये भी देखिए, ये भी बाहर है गेंद, वाइड बॉल। ठीक है, प्रेशर सागर पर निकल चुका है। पता है कि इस समय पर सागर थोड़ा सा नाराज लग रहा है क्योंकि ज्यादातर गेंदें बहुत बाहर गई, वाइड बॉल गई और 3 जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा के रूप में मिले वाइड के रूप में ना, वो थोड़ा सा दबाव सामने वालों पर साटा गए। ये लाइन, अब ये लाइन सही है, यहां पर रन नहीं मिलेंगे। डॉट टिकले आखिरी गेंद उन्होंने सिर्फ 3 रन डाले, वाइड दो 3 रन थे, 3 गेंदें वाइड डाली, एक गेंद डालने के लिए आपने, और यहां से टीम का स्कोर 71 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 69 पर। आखिरी का और थोड़ा सा महंगा जो सागर का, इस ओवर में 3 बड़े शॉट निकले मैदान पर। क्या गणेश इस वक्त ये मैच बचा पाएंगे? मैच थोड़ा सा मुश्किलों में, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के लिए मौका वापसी का। और पहली गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट सीमा रेखा से पार, 6 रन के लिए। नौ वापस 5 गेंदे पर 6 रन और ये फुल टॉस, इसी के साथ ये मुकाबला भी समाप्त मैदान पर 6 रन।